Any doubt? Yes, childrens. Anybody is having any sort of doubt? I think so. No one. Nobody is replying. Okay. So there are 35 मैम children now. Yes. Yes, Amit, say beta. हाँ मैम मेरा डाउट है डायलेशन स्टेज का थर्ड स्टेप आफ्टर बर्थ Hmm. वो वाला वो वाला जरा फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। Okay, okay. Just a second. हाँ Placental stage. You are asking about the placental stage, na beta? In parturition, there are 3 stages. First stage में क्या होगा? The cervix and the vagina will dilate. इसको हम dilation बोलते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे. The mouth of the cervix and the mouth of the vagina has broadened, means it has been dilated, so that the easy childbirth can take place. As I've told you, कितना dilate होना चाहिए? It should be about dilated about 10 centimeter at the time of parturition. Second step is expulsion. Expulsion में आप देख सकते हो इस diagram में, the head is foremost. In most of the cases, the head is foremost and the head comes first and then the next part. And then we can see that the umbilical cord, which has been connected between the child and the mother, it has been cut from the embryo side or the fetal side. Last stage is the placenta expulsion. Placenta का expulsion. अभी ये जो सारा connection है आप देख सकते हो इस diagram में कि सारा जो connection है ये वाला layer देखो आप. You see the cursor where I am moving the cursor. So all these placenta with the umbilical cord is been removed. ठीक है. So that stage is called as a placenta expulsion or placenta is expelled. ठीक है. क्योंकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वापस ये सारा चीजें प्रिपेयर होगा. हर प्रेगनेंसी में जितने बार प्रेगनेंसी होगी उतनी बार ये प्लेसेंटा विल बी रिमूव्ड आफ्टर द पार्चुरेशन. Placenta with the umbilical cord will be removed and again the uterus will be free now. Understood, Amit? यस मैम थैंक यू। यस मैम। Okay, beta. Okay. हाँ आपको मेरा आवाज इससे पहले नहीं आया था? नहीं बच्चा, ओके तो फिर मेरा कुछ माइक इशू रहेगा। आपको समझा ना बेटा? और कुछ डाउट है बेटा आपको? नो मैम। ओके बच्चा. So we have started with the reproductive health. So as I've told you to copy down this part, that is a birth control, that is which we call as the contraception. There are two methods, as a temporary method and a permanent method. इसके ऊपर या तो आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको 4 मार्क के क्वेश्चंस में 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं. अंडरस्टूड? एमसीक्यू में इसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर 1 मार्क, या फिर 2 मार्क, या फिर 4 मार्क के भी क्वेश्चन में 1 मार्क के इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. So you have to memorize all the terms, all the things which has been used both for the mostly for the temporary. Permanent में तो सिर्फ सर्जरी है. ठीक है. So for that I will be sharing the textbook so that we can just go through the textbook part. Okay. So now let us discuss about in the textbook, from the textbook also.
See here in the textbook, do you know the stem cells वाला ये जो सारे boxes दिए गए हैं, as I've told you every time, these boxes are very very important because यहाँ से आपको questions 100% पूछे जाएंगे, ठीक है? So फिर वो कोई भी subject हो, physics, chemistry, biology, all these boxes are very important. जहां पे भी उन्होंने बता के दिया है वहां से वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे. जो आपको पूछा गया, देखो ऐसे बहुत सारे जगह जहाँ पे उन्होंने आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो वहां से शायद क्वेश्चंस नहीं आएंगे. दैट इज जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट और टू क्रिएट इंटरेस्ट. बट यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने आंसर ऑलरेडी दिया है वहां से 100% क्वेश्चंस आएंगे. सो व्हाट आर स्टेम सेल्स? और स्टेम सेल्स क्या है? दे आर दी अनडिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल्स. Undifferentiated somatic cells which are capable of giving rise to any type of cells. ठीक है? ऐसे cells जिससे कि कुछ भी फॉर्म हो सकता है, कोई भी ऑर्गन्स फॉर्म हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे स्टेम सेल्स. तो स्टेम सेल्स कौन कौन से टाइप्स है? हमारा बोन मैरो, blood stem cells, cord cells, and the umbilical cord cells are the examples of the stem cells. Please, all of you, mark it in your textbook. These are the, can be asked in the board exam. Write down 2 examples of the stem cells. 2 examples of the stem cells. So you can write down any 1 or 2. That is bone marrow cells, bone blood stem cells, cord cells, or the umbilical cord cells. स्टेम सेल्स का प्रिजर्वेशन हम करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था. अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रिजर्वेशन होता है. क्यों होता है? टू ट्रीट मेनी डिजीजेस लाइक द पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, डायबिटीज, ल्यूकेमिया एंड आर्थराइटिस. You must be knowing about the Parkinson's disease. It's a nervous system problem. Alzheimer disease, it's a protein deficiency in which इंसान सब कुछ भूल जाता है. अल्जाइमर में क्या होता है? इंसान सब कुछ भूलने लगता है, मतलब खुद की आइडेंटिटी, खुद के आजू बाजू के लोग, मीन्स एवरीथिंग. ओके, दैट इज द अल्जाइमर. डायबिटीज यू ऑल नो, ल्यूकेमिया आपको पता है, ब्लड कैंसर, आर्थराइटिस आल्सो यू ऑल नोइंग. Okay, so this part we have already completed yesterday. Placenta, maybe we have seen the 2 types of placenta. The one which is shared with the fetus is called as a chorionic villi, and the one which is shared with the mother is called as a maternal placenta. Placenta हेमोकोरियल है, इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कल. अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉर्ड ब्लड बैंक which is present in Kolkata, which was the first Indian government cord blood bank. So please note down, again 1 mark question for the board exam. Cord blood क्या है, एक बार just go through this. It's the cord blood is the umbilical cord blood, is the blood that remains in the cord and the placenta, which has been done after the delivery, so post delivery. So cord blood banking is a process of collecting the cord blood, extraction, cryogenically preserving for its stem cells and other cells of immune system for future use. So cord blood is rich in stem cells which can transfer in all sorts of blood cells. They can be used to treat diseases that harms the blood and the immunity systems like the leukemia, certain cancers, sickle cell anemia. Do you know what is sickle cell anemia? सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप है ना, मून शेप हो जाता है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स भी होते हैं ना उसमें, आरबीसी में. क्या बच्चा? वो सिकल सेल एनीमिया की डिजीज में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी होते हैं ना मैम, जिससे हाथ थोड़ा ऐसे फूल जाता है. क्रोमोसोम नहीं है बच्चा, क्रोमोसिकल सेल एनीमिया. सिकल का मतलब क्या होता है? फिश, इट्स अ फिश. ठीक है, तो मून शेप का, हाफ मून होता है ना, हाफ मून, चंद्रमा जो आधा चंद्रमा होता है. तो आरबीसी का सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी है जो राउंड शेप का है, उस वो आधा हो गया. यस, इट हैज बिकम अ मून शेप like a sickle. Sickle is a type of a fish.
आधा चंद्रमा के जैसा हो जाता है। तो यू नो दैट कि अगर आरबीसी राउंड है तो उसके अंदर हेमोग्लोबिन होगा, और अगर यही आधा हो जाएगा, मून शेप, आधा मून शेप हो जाएगा, आधा चंद्रमा के जैसा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसमें कम हेमोग्लोबिन होगा। तो ऐसे पर्सन को हमेशा क्या होता है, हेमोग्लोबिन का कमी रहता है। तो वैसे डिजीज को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इट इज बिकॉज ऑफ द morphological change in the structure of the RBC. Okay, so this also you have to just go through, beta. These are the things. Again, the goals of RCH, you have, it can be asked again for 1 mark question कि what are the goals of RCH. RCH का मतलब क्या है? Reproductive and Child Health Care Programs. किस लिए किया जाता है? मैंने ये कल स्लाइड आपको दिखाया था। फॉर एजुकेटिंग द पीपल आइदर बाय ऑडियो विजुअल मेथड और बाय न्यूज़पेपर और बाय डूइंग सम एक्ट, बाय डूइंग द स्किट प्ले एंड ऑल। मतलब कोई भी तरीके से वी हैव टू एजुकेट द पीपल, वी हैव टू एजुकेट द यंग जनरेशन, ठीक है, टू नो, टू बी अवेयर अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड्स और अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन के ऊपर एक ब्रेक लगाने के लिए, ठीक है। देन सोशल एविल्स लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ये सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए भी दिस टॉपिक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन करना, ये सारी जो चीजें हैं वो सब चीजों के लिए अवेयर करता है। दिस आर द गोल्स ऑफ दिस RCH. Now let us move on to the topic that is birth control methods. Birth control is contraception to avoid the pregnancy. ये सब क्यों किया जाता है? To avoid the pregnancy. If you know that if a person is having 1 child or 2 child, हाँ, उसके बाद obviously it is मतलब वो गवर्नमेंट का भी नारा है ना, हम दो हमारे दो वाला। तो उसके आगे if प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो ऑल दिस मेथड्स कैन बी यूज्ड। सो नेचुरल मेथड और सेफ मेथड और रिदम मेथड, ठीक है। देखो ये जो मेथड है ना बेटा, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, यस, बट इट कैन बी यूज्ड, बट इट इज ऑलवेज नॉट, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बिकॉज ये जो मेथड है ना, दैट डिपेंड्स, ऑल दैट फुल्ली डिपेंड्स अपॉन द फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अगर फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम टू टाइम है, पीरियोडिक है, तभी ये मेथड काम करेगा, अदरवाइज ये मेथड बिल्कुल काम नहीं करेगा। So in the natural method, the principles of avoiding the chances of fertilization is used. A week before, underline all of you, a week before and a week after menstruation. ठीक है? A week before and a week after menstruation is being considered as a safe period, because we have already learned the menstrual cycle. We have seen that कि मेंस्ट्रुएशन के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? पॉलिफरेशन, एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो 14 से लेके 16th डे है, जब भी एग का ओव्यूलेशन होता है, एग का ओव्यूलेशन कभी होता है? 14th डे पे। तो 14th डे से लेके 16th डे तक वो हम क्या मानेंगे? अनसेफ पीरियड मानेंगे। अनसेफ क्योंकि ऑलरेडी एग रिलीज हो चुका है, एग रिलीज हो गया और अगर स्पर्म आया तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन होगा। पर इसके पहले अ वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुएशन के बाद वी कैन कंसिडर 5 मोर डेज। सो तभी हमें पता है कि एग तैयार हो रहा है, एग रिलीज नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे अगर क्वाइटस हुआ, पॉपुलेशन हुआ, तो ऑब्वियसली एग नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सो दैट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन द फीमेल का ओव्यूलेशन डेट। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द फीमेल का ओव्यूलेशन डेट। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बराबर है, इट इज ऑन पीरियोडिक टाइम टू टाइम, 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, देन इट विल वर्क, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। So its drawback lies in having high rate of failure also. Next is the coitus interruptus. Coitus का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम coitus भी कहते हैं।
ठीक है. So in this, what can be done? A male partner can withdraw his penis from the vagina just before the ejaculation. Yes. So before ejaculation, if the penis has been withdrawn, so क्या होगा? Insemination नहीं होगा. Insemination का मतलब क्या है? Semen cannot be put inside the vagina. ठीक है. Again, it has a many drawbacks because क्या है? प्री ejaculation fluid में भी कुछ sperms हो सकते हैं. ठीक है. प्री ejaculation fluid में भी कुछ sperms हो सकते हैं. And you all know that only one sperm is required for a zygote to form. ठीक है. And we have known that कि 1 ml semen के अंदर there are about 400 millions of sperm. So you can just imagine कि 1 ml is just a small quantity. उसमें से भी अगर एक ड्रॉप से भी कम, आधा ड्रॉप भी अगर रिलीज हो गया, तो उसमें भी 100 to 200 thousands of sperms रह सकते हैं. ठीक है. So again, it is not a it also has a highest rate of failure, but this can also be done. ठीक है. Next is the lactation amenorrhea. Okay, lactation कभी होता है? Yesterday we have learned after the delivery. So this method is based on the fact that ovulation does not occur during the period of lactation. मैंने आपको कल भी बताया था कि जब तक मदर फीडिंग करती है, जब तक लैक्टेशन शुरू रहता है, लैक्टेशन शुरू है मतलब कि प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिवेटेड है. तो जब तक लैक्टेशन चालू है, जब तक कि फीमेल बच्चे को, छोटे बच्चे को दूध पिलाती है, तब तक ओव्यूलेशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन अवॉइड होता है. क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर ब्लड में हाई लेवल पे है, तो एफएसएच हार्मोन कभी भी पिक्चर में नहीं आएगा, और एफएसएच नहीं रहेगा तो फॉलिकल नहीं स्टिमुलेट होगा, और फिर एग या एक्स फॉर्मेशन नहीं होगा. Okay, so therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, I am telling the word fully. ऐसा नहीं है कि 1 साल तक बच्चा दूध पीता रहेगा तब भी ऐसा होगा. No, it is always fully, means about 6 months तक, at least 6 months. So chances of conceptions are always negligible. ठीक है. Again this depends upon the female का prolactin level. If at any time the prolactin level goes down, ठीक है, हाँ, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है मदर, ठीक है, 1 month हो गया, 2 months हो गया, और समझो अचानक से प्रोलैक्टिन लेवल एकदम कम हो गया, तो फिर से ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा. अगेन इट इज नॉट वेरी श्योर. ठीक है. सो अगेन इट कैन बी, मतलब एकदम चांसेस ऑफ फेलियर बहुत रहता है इसमें. So however, this method also has a high chance of failure, but this can also be a method. Next, अब इसके बाद के जो भी methods आप पढ़ोगे, उसके अंदर mostly chances of failure थोड़े कम रहते हैं. ठीक है, कम रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते हैं, कम रहते हैं. Okay, next is the केमिकल मीन्स. स्पर्मिसाइड्स का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे इंसेक्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड्स होता है. इंसेक्टिसाइड का मतलब इंसेक्ट को मारने वाली दवाई, पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को मारने वाली दवाई. वैसे स्पर्मिसाइड का मतलब है स्पर्म को मारने वाली दवाई. गॉट इट? सो केमिकल्स हम यूज कर सकते हैं जिससे कि स्पर्म मर जाए. ठीक है. तो वो केमिकल्स बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है मार्केट में. फोम के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, जेलीज के फॉर्म में, क्रीम के फॉर्म में. बट अब ये सारे जो चीजें हैं वो कौन अप्लाई करेगा? ऑब्वियसली द फीमेल पार्टनर. ठीक है. व्हेन आफ्टर द इंटरकोर्स काम करेगा क्या ये? ऑब्वियसली इट शुड बी बिफोर द इंटरकोर्स, है ना? क्योंकि अगर बिफोर द इंटरकोर्स और स्पर्म आया तो ये फोम में जो केमिकल्स है या जेलीज में जो केमिकल्स है उसकी वजह से स्पर्म मर जाएगा. अंडरस्टूड और रिफ्यू? So it should be again before the sexual intercourse, where it should be introduced into the vagina. ठीक है. What it will do? It will either immobilize or it will kill the sperm. Yes, it may cause allergic reaction to whom? To whom? Obviously to the female who is applying. क्योंकि female ये किधर apply कर रही है? In the vagina. So because ये spermicide है, तो obviously chemicals use हो रहा है.
तो इट मे कॉज द एलर्जिक रिएक्शन टू द फीमेल. ठीक है. अगेन दिस मेथड ऑल्सो हैज अ चांसेस ऑफ फेलियर, बिकॉज समझो अगर वो फोम अच्छी तरह से नहीं लगा या फिर टैबलेट अच्छी तरह से प्लेस्ड नहीं हुआ है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा इसका. अंडरस्टूड. So all again this also has a high chance of failure. Not high but yes it has a chances of failure. इसके ऊपर के आपने जितने भी पढ़े थे उसमें आपने क्या पढ़ा था? It has a high chance of failure. But यहाँ पे it has a chance of failure. Next is the mechanical barriers or the barrier methods. Please इसका alternative नाम्स भी आपको याद रखना है. Mechanical, which can be used mechanically, physically. उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल. बैरियर्स है ये. बैरियर का मतलब क्या होता है बेटा? रुकावट. हाँ, जिससे कि स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाए, जिससे कि स्पर्म वजाइना या सर्विक्स में नहीं जा पाए, तो ये क्या करेगा? एक बैरियर का काम करेगा. ठीक है. तो उसमें सबसे पहला आता है कॉन्डम, विच इज वेरी फेमस. यू ऑल नो अबाउट दैट, है ना? So condom is a rubber sheath, yes, that has been covered to the penis of a male during the copulation. Again, can be asked for a 1-mark question, huh? To define the condom. So it is a thin rubber sheath. Underline all of you, thin rubber sheath. What will happen? Yes, as it is a rubber sheath, तो क्या हो जाएगा? सारा सीमेन उस रबर शीट के अंदर रह जाएगा और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन नहीं जाएगा और उसे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. ठीक है. यस, नाउ दिस मेथड इज वेरी इफेक्टिव. व्हाई इफेक्टिव? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स. ठीक है. द मोस्ट कॉमन वन विच इज बीन यूज्ड इज द निरोध. ठीक है. इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स बाय द मेल. इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इट इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री. ठीक है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. किस लिए फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ऑब्वियसली टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. अंडरस्टूड. So it is easily available and is given free by the government. Free by the government. ठीक है. It should be obviously properly discarded, and it is a safeguard against the many sexually transmitted disease. ठीक है. तो इसके दो फायदे हैं. एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल होता है और दूसरा जो भी एसटीडी बीमारी है, एसटीडी का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो भी बीमारी है उससे भी ये प्रिवेंट करता है, तो वो बीमारी भी नहीं फैलती है. ठीक है. तो ये तो हो गया कॉन्डम्स विच इज बीन यूज्ड बाय द मेल. वैसे ही देयर आर फीमेल कॉन्डम्स आल्सो, which are been called as a diaphragm or the cervical caps or the walls. So these devices are used by the female. अभी देखो इसके बाद जो भी चीजें आप देखोगे ना, it will be used by the female only. ठीक है. Everything will be used by the female. So it's again made up of a rubber sheath. रबर शीट से बना है. It will block the sperm to entry through the cervix. So it is inserted in the female reproductive tract to cover the cervix during the copulation, and therefore it is called as a female condom. Understood? Next, I is the IUD. I think so 2 years back, ये not 2 year, I think so, yes 2 years back. हाँ, बोर्ड एग्जाम में आईयूडी का फुल फॉर्म पूछा था 1 मार्क के लिए. राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ आईयूडी. बहुत सारे बच्चे लोगों ने पता नहीं वो केमिस्ट्री वाला क्या क्या लिखा था. आपको यूपीएससी नेम में भी कुछ है ना केमिस्ट्री में, वैसा कुछ तो भी पता नहीं क्या 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 यूनियन दिस दैट सब लिख के रखा था. यूनियन डेवलपमेंट, इंडियन यूनियन डेवलपमेंट, आई डोंट नो व्हाट नॉट. ओके. सो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस. इंट्रा मतलब इनसाइड. कहाँ पे इनसाइड? यूट्रस के इनसाइड. When we are putting some device which will act as a contraceptive, it will be called as a IUD. ठीक है. So it can be plastic or it can be a metal object. That depends. Again, उसको कौन implant कर सकता है? It will be implanted by a trained nurse or a doctor. There are many examples. Very important for your board exam. ये सारे examples आपको याद करने हैं.
So these devices are, they can be loops, Lipes loop. Very famous is the copper T. Okay, copper 7, multi-load 375. There can be some hormone releasing IUDs like the LNG20 or the Progestasert. Understood? तो ये सब नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है. Now why copper? Why not gold? Why not silver? See, copper is a one which is having a spermicidal action. Means what? It's a natural spermicidal. तो ये जो कॉपर टी है ना, इट इज अ टी शेप. यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो. इट्स अ टी शेप कॉपर का वायर which has been inserted. You can see over here how it has been inserted in the diagram. You can see nicely and properly. You can see the live loops. हाँ, अब देखो ये कॉपर टी क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इम्प्लांट किया जा रहा है. तो क्या हो रहा है, यहाँ से स्पर्म आएगा तो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएगा. अगेन यहाँ से आएगा तो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएगा. अंडरस्टूड? ओके, कॉपर का इस्तेमाल ज्यादा क्यों किया गया है यहाँ पे? बिकॉज द कॉपर इज नेचुरल स्पर्मिसाइडल. ठीक है, सो ज्यादा कॉपर का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. As this topic comes, I always tell to the children, there are many children जो लोग कॉपर के ही बॉटल्स यूज करते हैं, दिन भर कॉपर के बॉटल्स यूज करते हैं. हाँ, स्पेशली बॉयज, जो भी बॉयज हैं इस ग्रुप में, प्लीज नोट डाउन बेटा कि पूरा दिन आपको कॉपर में पानी नहीं पीना है, पूरा दिन नहीं पीना है. ठीक है, यस, कॉपर इज वेरी एसेंशियल टू अवर बॉडी, but all these things are been required to our body in small quantity. These are the minerals which are been required to our body in a very minute quantities. ठीक है, बट आजकल के लोग क्या सुनते हैं, टीवी में देखते हैं कि कॉपर बहुत अच्छा है, कॉपर के पानी इसमें पीने से ब्लड प्रेशर ये होता है, वो होता है, दिस एंड दैट, एंड पूरा दिन सिर्फ कॉपर से पानी पीते हैं. सो that much copper is also not at all good to the body, especially the boy children's. ठीक है, that may affect the spermatogenesis. ठीक है, understood all of you? Okay, Yes. so you can see this Lipes loops also. You can see the diagram. So again, it's a plastic double S shaped loop. It attracts the macrophages, stimulating them to accumulate in the uterine cavity. ठीक है, अब देखो ये क्या काम करता है, ये मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करता है. मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करता है कहाँ पर? यूट्रस में. तो मैक्रोफेजेस का काम क्या है? फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस मींस एक्ट ऑफ एनगल्फिंग. तो जैसे ही स्पर्म आएगा, ये मैक्रोफेजेस उसको सब डिस्ट्रॉय कर देगा. So again, it will act now as a contraceptive. Copper releasing IUDs, as I've told you just now, they will suppress the sperm ka motility and fertilizing capacity of the sperm. So therefore, again it has been mentioned over here, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, please use the copper, but in a very minute quantity. ठीक है, it is beneficial to drink copper water early in the morning, but only once, पूरा दिन नहीं. ठीक है, okay, so hormone releasing IUDs make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to the sperm. It delays the pregnancy for a longer period. ठीक है, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं ऑब्वियसली. हाँ बेटा बोलो अमित. हाँ, आपने जस्ट कहा कि कॉपर के पानी, मतलब कि कॉपर के यूटेंसिल से पानी पूरे दिन नहीं पीना चाहिए, राइट? हाँ बेटा, तो उस हिसाब से कॉपर के मटके से भी नहीं पीना चाहिए. कॉपर के मटके से भी नहीं पीना चाहिए क्या? मतलब अरे बच्चा, कॉपर कोई भी शेप में हो, फिर वो बॉटल के शेप में हो, मटके के शेप में हो, टाकी के शेप में हो, कॉपर इज कॉपर ओनली ना बेटा. When you are drinking the water, that copper minerals is going inside the water, na? Understood? So shape doesn't matter. Copper is important over there, ना? फिर वो बॉटल हो, मटका हो, कुछ भी हो, उसमें कॉपर जा रहा है कि नहीं? जा रहा है. तो फिर वो कुछ भी होने दो ना. That doesn't matter. The shape doesn't matter. The container doesn't matter. What I mean to say, bachcha, please try to understand the meaning. What I mean to say. See,
कॉपर इज बेनिफिशियल, नो डाउट, ठीक है, बट पूरा दिन पीना इज नॉट गुड, ठीक है, ज्यादा कॉपर अपने बॉडी को जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल दीज आर द मिनरल्स, एंड दीज मिनरल्स एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, सी you have learned in nutrition lesson there are macro and micronutrients. Macronutrients में आते हैं carbohydrates, fats and proteins, but micronutrients में आते हैं vitamins and minerals, ठीक है, no doubt vitamins are good for the body, but over vitamin is also not good for the body. Understood? आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ मैम, ठीक है, विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, बिकॉज दे आर प्रीकर्सर्स फॉर मेनी एंजाइम्स। वैसे ही मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर प्रीकर्सर्स फॉर मेनी एंजाइम्स। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगी, कैल्शियम। ठीक है, यू ऑल नो दैट कैल्शियम इज वेरी गुड फॉर द बॉडी, है ना, बिकॉज योर टीथ इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, योर बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम. Calcium plays a very important role in our blood clotting also. Calcium is very important for the nervous system also. but अगर यही कैल्शियम आप ज्यादा लेने लगोगे ना, तो what will happen, it will get deposit in your joints, it will form the kidney stones in your body. अंडरस्टूड? एक यस सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया है कैल्शियम का, वैसे ही हर एक चीज के लिए बेटा, फिर वो विटामिन ही क्यों ना हो, फिर वो ए विटामिन बी विटामिन ही क्यों ना हो, एनीथिंग इन एक्सेस इज ऑलवेज नॉट गुड. Similarly, I've told you about the copper also. Yes, copper is good to drink. Copper water is very, very beneficial in Ayurvedics. But it should be taken early in the morning. Okay, you have to keep that overnight and you have to drink that water early in the morning. So it has many health benefits. But if the same thing you are doing full day, that means that much copper is going in your body, and that is obviously not at all good. Okay, you can drink water full day which you have stored in a earthen pots. Earthen pots मतलब समझता है ना बेटा, मट्टी के मट्टी के हाँ, मट्टी हाँ, उसमें रखा हुआ चलेगा बेटा, बिकॉज इट्स अ earthen pot. You can drink the water in steel also, but not more in copper. Understood? I hope the things are been clear to you now. यस Okay, why I've told you specifically for the male children's, because you have just now read, आपने खुद पढ़ा ना यहाँ पे कि it has copper is having the property of suppressing the sperm mortality and fertilizing capacity. ठीक है, तो फिर क्या होता है, अभी आपको कुछ भी नहीं समझेगा बेटा ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि अभी कुछ अचानक से हो जाएगा. But when you are attending a age, हाँ, after one age, what will happen कि स्पर्म मोटाइल नहीं रही, मीन स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी. then you will be thinking कि I am having very nice food, I am having a very rich diet food, I am not eating this and that. ठीक है, बट छोटी छोटी चीजों से कितना फर्क पड़ता है. अंडरस्टूड? ओके, so hormone releasing IUDs make the uterus unsuitable for implantation and cervix. Okay, so that we have seen. हाँ, तो I was telling about the UIDs के ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं. किसी किसी फीमेल में वो यूट्रस में इम्प्लांट करने की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम हेमोरेज कहते हैं. देन ये कॉपर के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है. ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बिकॉज ऑफ मेनी चेंजेस विल टेक प्लेस. फिर आता है ओरल पिल्स के बारे में. पिल्स मतलब दवाइयां इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट. ठीक है, so that is called as a physiological devices or the oral devices. So it can be taken in the form of tablets, which we commonly call as a pills. So it's a oral contraceptive, again which will be used by the female only, not the male. Very important question for the board exam. What does the pill contain? So the pill contain two hormones, combination of two hormones, progesterone and estrogen. Please note down. The pill contain combination of two hormones, that is the progesterone and estrogen. Now what this hormone will do?
they will inhibit the ovulation, hence no egg. एग ही नहीं है तो क्या होगा, स्पर्म आने से भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये पिल्स में होता क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन रहता है। अभी आपको पता है कि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल अगर हाई रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन आपने पढ़ा ना 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, जब तक 9 मंथ प्रेग्नेंट रहते हैं तभी ओव्यूलेशन होता है कि नहीं होता है? टेल मी। नो, नहीं नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बेटा, क्यों नहीं होता है? कौन सा हार्मोन एकदम पीक पे रहता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन नहीं बच्चा, progesterone. Please Sharon, try to understand what I'm asking you. I'm not asking during lactation, I'm asking during pregnancy. प्रेगनेंसी Yes. के टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होता है ना? ओव्यूलेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल एकदम हाई होता है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है बॉडी में। अंडरस्टूड? Yes, miss. अंडरस्टूड? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों क्या करते हैं, वो एंडोमेट्रियम के लेयर को थिक रखते हैं ताकि एम्ब्रियो का मिसकैरेज न हो सके। ओके, अब देखो क्या किया जा रहा है इस दवाई में। क्या है इस दवाई में? प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन है। हाँ, इस दवाई में प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन है। तो आप मुझे बताओ कि अगर कोई लेडी प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन की दवाइयां खा रही है तो क्या होगा? ऑब्वियसली दैट विल बी अ सिग्नल कि अब ओव्यूलेशन नहीं करना है, बिकॉज बॉडी को ऐसा बताया जा रहा है कि देयर इज अ प्रेगनेंसी, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल। हम बाहर से प्रोजेस्ट्रॉन अगर खा रहे हैं तो अपना बॉडी क्या करेगा, स्टार्ट इट विल एज्यूम दैट कि यस इट इज प्रेग्नेंट, द बॉडी इज प्रेग्नेंट। अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? ठीक है, सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, एट दैट टाइम ओव्यूलेशन विल नॉट टेक प्लेस, एंड अगर ओव्यूलेशन ही नहीं है, एग ही नहीं है, तो स्पर्म आके भी कुछ मतलब नहीं है। अंडरस्टूड? सो बट अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम अपनी नेचुरल बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ करते हैं तो अगेन बॉडी विल स्टार्ट रिएक्टिंग दैट वे। ठीक है, यस। सो सिमिलरली ओवर हियर ऑल्सो, अगर पिल्स ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बिगड़ता ही है, साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं पिल्स के। ठीक है, ओके, सो they also alter the quality of cervical mucus to prevent the entry of sperm. The pills have many side effects. Even the pills can be ज़्यादा pills खाने से it may lead to the cervical cancer also. Okay, the further studies have told that अगर ये pills का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो it may lead to the cervical cancer. It is one of the cause for the cancer also. पिल्स खाने से क्या क्या होता है, नॉशिया होता है, वेट गेन होता है, टेंडरनेस ऑफ द ब्रेस्ट होता है, हाँ, स्लाइट ब्लड लॉस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड। व्हाट आर द पिल्स व्हिच आर बीन यूज्ड? पहले के टाइम पे माला डी करके था, माला डी करके था। डी का मतलब था डेली, दैट पिल्स वाज बीन टेकन डेली। बट नेक्स्ट पिल्स which has been used nowadays is the Saheli. ठीक है, which is again a pill which can be नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल क्यों है? देखो ये सारे हार्मोन्स है ना, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, बट इसके अंदर उसको नॉन मतलब प्रोजेस्ट्रॉन का ही नेक्स्ट कॉपी बनाया गया है, नेक्स्ट कॉपी उसका रेप्लिका बनाया गया है जो नॉन स्टेरॉइडल है। इट विल वर्क इन द सेम वे। ओके, सो the Saheli has been taken weekly. Please underline, the Saheli has been taken weekly. इसके पहले माला डी इस्तेमाल होता था, डी का मतलब इट वाज बीन टेकन डेली, बट it is replaced by Saheli which has been taken once in a week, and again Saheli has been sponsored by the government. You can see this packet also. So Saheli is a part of National Family Program as an oral contraceptive pills in India. Understood? Next method is the implantation. अब implantation में there are again done by the female. It should be again done by a female. So it can be a tiny thin rod like a matchstick. You can see in the diagram also एक matchstick जितना ही
पतला लंबा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है. It is implanted under the skin of the upper arm. Of the upper arm, underline. It is implanted under the skin of the upper arm, underline. Again the same thing it will do. It will contain progesterone and estrogen. सेम एक्शन है लाइक पिल्स, सिर्फ इसको इम्प्लांट किया जाता है और पिल्स को खाना पड़ता है, यही फर्क है. सो अगेन इट विल प्रिवेंट द प्रेगनेंसी फॉर 3 to 4 years. अंडरस्टूड? यस और नो? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो ये सारे मेथड्स आपको याद करना है बेटा. यस, यू हैव टू मेमोराइज द नेम्स आल्सो. स्पेशली द क्वेश्चन आपको ये वाले सेक्शन से ज्यादा पूछ सकते हैं. ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखना है. कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375. ठीक है, और हार्मोन रिलीज करने वाला ये तो क्या है, दो टाइप के डिवाइसेस है. एक तो सम मिनरल रिलीजिंग और एक हार्मोन रिलीजिंग. हार्मोन में कौन आता है, LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट. तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, नेम वन IUD विच इज हार्मोन रिलीजिंग टाइप. सो आंसर शुड बी LNG-20. नेम वन हार्मोन विच इज सम मेटल रिलीजिंग टाइप. सो मेटल वाले में आप कॉपर टी, कॉपर 7 सब लिख सकते हो. और write a short note on Lipes loop. So you should be able to write down what is the function of Lipes loop. It is working in a different manner. कैसे काम करता है, by attracting the macrophages. तो Lipes loop भी बहुत important है बोर्ड एग्जाम के लिए. फिर नेक्स्ट पार्ट पिल्स के बारे में कि पिल्स में क्या चीज होता है. तो पिल्स में हैव यू ऑल अंडरलाइन, इट कंटेन्स 2 हार्मोन, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन एंड द एस्ट्रोजन. Any doubt till here? If you want, you can ask me. Next is the permanent method. परमानेंट मेथड मतलब ना दवाई खाने की जरूरत है, ना कुछ इम्प्लांट करने की जरूरत है, ना कॉन्डम्स यूज करने की जरूरत है. मींस ये सारी चीजें कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है. इट्स अ परमानेंट मेथड. So when it has been done with the men, it is called as vasectomy, and when it has been done with the female, it is called as a tubectomy. The diagram only is self-explanatory. You can see the vasa difference. It has been cut and tied. अब क्या होगा, टेस्टिस से स्पर्म बनता है, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में जाता है, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस जाता है, और वास डिफरेंस से होते हुए ये पिनाइल यूरेथ्रा में आता है. बट हमने इसका रास्ता ही रोक दिया है ना, हमने उसका रास्ता ही रोक दिया, उसका पाथवे रोक दिया है. तो सारे स्पर्म्स आएंगे पर यहीं तक रुक जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे. सो दिस मेथड इज अ परमानेंट मेथड कि स्पर्म ही नहीं रहेगा. यस, ऐसा नहीं है कि इट कैन नॉट डू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स. हाँ, क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि मैम वैसेक्टोमी होने के बाद can a male do coitus? So yes, everything will be normal. सिर्फ फर्क किसका रहेगा, yes, सिर्फ सीमेन में स्पर्म नहीं रहेगा, सीमेन रहेगा. सीमेन क्यों रहेगा, क्योंकि समाइनल वेसिकल का सिक्रीशन रहेगा, कोपस ग्लैंड का सिक्रीशन रहेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो यहाँ पर है ना, वो सारा सिक्रीशन रहेगा. सिर्फ फर्क किसका रहेगा कि स्पर्म नहीं रहेगा. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, Okay. ma'am. Yes. So this is a surgical method and therefore it is called as a sterilization. Sterile का मतलब क्या होता है, sterile मतलब जो fertile नहीं है. हाँ, sterile मतलब जो next young one produce नहीं कर सकता, उसे हम sterile कहते हैं. So vasectomy is a part of a small part of a vasa difference is tied and cut, whereas the tubectomy is a fallopian tube का cut and tie. This will block the gamete transport and it will prevent the pregnancy. Now see over here in female also. Female में ovary से egg release हुआ, इस fallopian tube में गया, isthmus में गया, यहाँ तक गया. अब यहाँ पे कट कर दिया तो sperm यहाँ पे आएगा भी, समझो sperm
अगर आ भी रहा है तो इसके आगे नहीं जा पा रहा है ना, बिकॉज फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे होता है, इस्थमस रीजन में होता है या एम्पुलर रीजन में होता है, पर अगर यहाँ से ही नहीं आगे जा पाएगा तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन ब्लॉक हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो हैव अ लुक ऑल ऑफ यू, एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी. Go through each and every part. As I've told you today also, these are the awareness topic, and obviously awareness topic पे questions आता है. Goals can also be asked for 1 mark. Write down 2 goals. Just go through. Yes, children, any doubt? हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो. हाँ मैम, एक बार वो बास डिफरेंस कट किया तो फिर से रिजॉइन कर सकते, मतलब रिवर्सल के बाद? क्या बेटा? वो वासेक्टमी में we tied and cut the vas difference, so again we can join it. Yes, we can, but वो इतने अच्छे से जुड़ेगा नहीं. Yes, we can. There are many operations in which it has been opened also. The tied one, it has been opened also, but उसकी 100% guarantee नहीं होती है कि the sperm will be coming in a proper direction. Yes, good question you have asked बेटा. इन मेनी केसेस क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सालों के बाद ऐसा फील हुआ कि नहीं, दिस शुड बी रिमूव्ड, ये कट किया, हमें मतलब किसी कपल को बच्चा चाहिए, तो व्हाट दे कैन डू, ये टाइड नॉट को खोल सकते हैं और फिर इधर एक स्टंट डाल के इसका पैसेज को ज्वाइन किया जाता है. मीन्स वो जो दोनों भी ओपनिंग्स है ना उसको ज्वाइन किया जाता है. अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग यू? Yes. हाँ, इस दोनों ओपनिंग को ज्वाइन करके रख सकते हैं. यस, इट कैन बी डन, बट chances of fertilization that depends upon, see, there are many things which can be untold, है ना? There are some Yes. magics also, है ना? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. Okay, so the next topic which we are going to learn is the MTP. MTP का मतलब होता है abortion. ठीक है, जिसको आप नॉर्मल टर्म में सुनते हो अबॉर्शन, उसी को मेडिकल टर्म में एमटीपी कहा जाता है. तो एमटीपी का मतलब क्या है? इंटेंशनल. इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, वॉलेंट्री, खुद के इच्छा से, जब हम प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करते हैं, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करते हैं बिफोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर अ फुल टर्म बेबी इज बीन फॉर्म्ड is called as a medical termination. So medical termination कब तक safe माना जाता है? Till the 3 months. After 3 months, it is not at all advised by the doctor. Understood? Okay. So MTP, it is also called as a induced. Induced का मतलब है जानबूझ के किया हुआ abortion. So it is essential. ये क्यों किया जाता है? Obviously
ये इसलिए किया जाता है इफ द बेबी इज एबनॉर्मल, इफ द फीटस इज हैविंग सब एबनॉर्मेलिटीज। आजकल तो हम टेस्ट करके पहले ही बता पाते हैं, मतलब इन द मंथ ऑफ थर्ड मंथ में हम बता पाते हैं कि बाय डूइंग द ब्लड टेस्ट, बाय डूइंग द सोनोग्राफी, ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट द चाइल्ड इज डाउन सिंड्रोम और नॉट। डू यू नो अबाउट डाउन सिंड्रोम? किसी को पता है डाउन सिंड्रोम के बारे में? Yes. ओके, तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे कैसे होते हैं बेटा? वही तो जाड़े जाड़े होते हैं ना, ऐसे होते हैं। जाड़े होते हैं और फिर उसके ऊपर रैशेस ऐसे कुछ तो सिम्टम्स आते हैं। अरे बेटा जाड़े का कुछ मतलब मतलब नहीं है overweight उसमें। होते हैं। अच्छा वो नहीं है। ओके बोलो, any other one, anyone? मिस को रेड रेड रैशेस आ जाते हैं ना। नहीं बच्चा, नहीं 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 प्रचीत, डाउन सिंड्रोम अलग है। और कोई किसी को पता है डाउन सिंड्रोम के बारे में? anyone else knows about the It's down syndrome? chromosomal disease. Yes, no doubt it's a chromosomal disease, but what exactly happens? मतलब वो बच्चा कैसा होता है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? Abnormal रहता है। तो एबनॉर्मल रिलेटेड टू विच पार्ट? एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड टू विच पार्ट? उसका Mentally हाथ ठीक retarded. नहीं है कि पैर ठीक नहीं है? Brain. Yes, brain. Got it, all of you? So Down syndrome, as Sharon has rightly told, it's a chromosomal abnormality. Yes, beta. It's a chromosomal abnormality. ठीक है? Instead of 2 chromosome, the 21st chromosome का ट्राइसोमी हो जाता है। हाँ, इंस्टेड ऑफ 2 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो देखो एक क्रोमोसोम भी अगर बढ़ गया, एक क्रोमोसोम भी बढ़ गया तो कितना फर्क पड़ता है। 21st क्रोमोसोम अगर 2 के जगह पे 3 हो गया तो दैट चाइल्ड विल बी मेंटली एबनॉर्मल। मेंटली एबनॉर्मल, यहाँ पे उसके फैट से कोई लेना देना नहीं है, उसके बॉडी के रैशेस से कोई लेना देना नहीं है। दैट चाइल्ड विल बी मेंटली एबनॉर्मल। अंडरस्टूड? सो ऐसे बच्चों के लिए देयर इज अ स्पेशल स्कूल्स। हाँ, बहुत सारे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, दे आर हैविंग अ स्पेशल स्कूल्स जहाँ पे उनको उनके हिसाब से बताया जाता है, ट्रीट किया जाता है। दे आर बीन कॉल्ड एज अ स्पेशल चाइल्ड्स। अंडरस्टूड? उनका उनका डिमार्केशन क्या है? दे विल बी हैविंग अ मून फेस, प्रोट्रूडिंग टंग, टंग हमेशा बाहर रहता है। हाँ, मून फेस, आप चेहरा देखकर ही पहचान सकते हो कि ये डाउन सिंड्रोम का बच्चा है। ठीक है? द फेस इज अलाइक, मतलब सारे डाउन सिंड्रोम के बच्चे है ना ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, ऑलमोस्ट सेम। सबका मून फेस होता है, सबका आईज का जो पलके है वो थोड़ा सा ऐसा पूरी तरह से खुल नहीं पाता है, सबका ऐसा प्रोट्रूडिंग टंग रहता है, टंग थोड़ा हमेशा बाहर ही रहता है। दे आर एबनॉर्मल, दे आर मेंटली एबनॉर्मल चिल्ड्रंस। ठीक है? तो वो लोग कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी बड़े हो जाए, बट उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग कि सम ये आजकल हम प्रेगनेंसी के टाइम पे ही हम बाय डूइंग द टेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, वी कैन अंडरस्टैंड द चाइल्ड whether it is normal or abnormal। ये तो मैंने आपको एक डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल बताया। ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स है, जैसे कि किल्फिंटर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, जिससे कि बच्चा सेक्सुअली क्या होता है, जिसको आप यूनिकॉइड्स बोलते हो। यस, तो वो भी लोगों के बारे में हम पता कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अंडरस्टूड? तो अगर समझो ऐसा कुछ प्रेगनेंसी है तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो, उसका बच्चा सेक्सुअली स्टेराइल हो, है ना? तो ऐसे टाइम पे क्या किया जा सकता है? बाय डॉक्टर्स परमिशन, ठीक है, इट कैन बी टर्मिनेटेड। बट इसका इस्तेमाल लोग गलत तरीके से करते हैं। किस लिए करते हैं? यू ऑल नो दैट इट इज बीन डन फॉर फीमेल फर्टिसाइड्स, है ना? बहुत सारे जगहों में आज भी गांव में वगैरह क्या होता है कि अगर फीमेल बच्चा किसी को नहीं चाहिए रहता है, फीमेल चाइल्ड किसी को नहीं चाहिए रहता है, तो क्या करते हैं लोग? सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी करने के बाद अगर उनको पता चलता है कि ये फीमेल चाइल्ड है तो उसका एमटीपी करवा देते हैं। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन करा देते हैं। मिस उसका Understood? अबॉर्शन भी करवाते हैं ना? हाँ बच्चा, तो अबॉर्शन को ही तो मैं एमटीपी कह रही हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अबॉर्शन को ही तो हम एमटीपी कहते हैं, बट एमटीपी वर्ड इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स,
नॉर्मल लोग उसको अबॉर्शन कहते हैं। हाँ बोलो। मैम शायद से वो सोनोग्राफी यूज करके बच्चे का जेंडर देखना शायद से अभी इलीगल किया है ना। हाँ बेटा वही तो, यस मैं क्या बता रही हूँ बच्चा, यस वो तो अभी भी इलीगल ही है। अगर किसी को पता चल गया तो इम्प्रिजनमेंट होता है विद अ हाई फाइन। ठीक है, बट मैं आपको क्या बता रही थी, एमटीपी का इस्तेमाल मिस यूज होता था इसके लिए, तो फिर अब ये सब चीजें बंद हो गई है। पहले के मतलब पहले मीन्स थोड़े साल पहले क्या किया जाता था, और अब भी शहरों में तो नहीं होता है पर अब भी कहीं कहीं जगहों पे हाँ सोनोग्राफी करके एमटीपी किया जाता है। बहुत सारे जगह अभी भी यू नो दैट मैल प्रैक्टिस इज बीन डन। ओके, नेक्स्ट टेक्निक इज द एमनियोसेंटेसिस। देखो हमने पढ़ा कि बच्चा कहाँ पे ग्रो करता है, इन द एमनियोटिक कैविटी इन अ फ्लूइड कॉल्ड एज द एमनियोटिक फ्लूइड, है ना। तो एमनियोटिक फ्लूइड को हम सीरिंज से निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ निडल एंड सीरिंज। देखो प्रेग्नेंट वुमन में हम निडल इसके सीरिंज के थ्रू हम ये एमनियोटिक फ्लूइड निकाल सकते हैं। दिस एमनियोटिक फ्लूइड हैज अ फीटल सेल्स। इस फ्लूइड के अंदर फीटल के सेल्स होते हैं, और ये फीटल के सेल से हम कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को चेक कर सकते हैं अगेन। ठीक है, अगर डॉक्टर को लग रहा है कि नहीं ये जो बच्चा ग्रो कर रहा है इसके अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज है, तो पहले इससे सोनोग्राफी से कंफर्म हुआ, पर सोनोग्राफी से भी मेन ज्यादा परफेक्शन किससे मिलेगा, जब हम सेल्स का स्टडी करेंगे। तो सेल्स का स्टडी कैसे हो सकता है, बाय डूइंग द एमनियोसेंटेसिस। सो एमनियोसेंटेसिस से क्या करेंगे, हम एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ करेंगे, यस, और फिर उसका स्टडी करेंगे कि इसके अंदर सारे क्रोमोसोम्स प्रॉपरली है या नहीं। अंडरस्टूड। सोनोग्राफी से सिर्फ दिखेगा, बट टोटली प्रूव्ड किससे होगा, विद द हेल्प ऑफ एमनियोसेंटेसिस। अंडरस्टूड। सो you can see that a hollow needle is inserted into the uterus. Obviously ऐसे ही नहीं किया जाता है, नहीं तो वो सुई बच्चे को भी चुभ सकती है। तो अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी, ये जहां बच्चे का पोजीशन को देखते हुए निडल के थ्रू ये फ्लूइड विड्रॉ किया जाता है। Okay, so chromosome studies are used to see the abnormalities in the fetus, but the dangerous trend is misusing. Again, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, हाँ ये किस लिए इन्वेंट किया गया था, सोनोग्राफी का इन्वेंशन क्यों हुआ था, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था कि बच्चे का पोजीशन कैसा है कैसा नहीं है, इसकी वजह से फीमेल मोर्टेलिटी भी रेट बहुत हाई था और फीटल मोर्टेलिटी भी बहुत हाई था। पहले के टाइम में लोगों के पास बहुत बच्चे होते थे ना, है ना, क्यों होते थे, द रीजन वाज दिस टू रीजंस, कि पहले के टाइम पे इतना मेडिकल या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट नहीं था, तो फीमेल मर जाती थी ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, या फिर वो बच्चा मर जाता था बिकॉज क्लियर नहीं रहता था कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड उस बच्चे के गले में अटका है या नहीं। सो देयर वाज मेनी थिंग्स, है ना। सो ये सोनोग्राफी आते ही क्या हो गया, एक इट वाज अ बून टू द मेडिकल डिपार्टमेंट कि we can notice the child का movement, we can notice कि whether the child has come upside down, मतलब सर नीचे आया है कि नहीं, कि पैर ही है, means all these things was been used to diagnose, but फिर उसका गलत इस्तेमाल होने लगा for knowing the female fertilizers। वैसे ही इस amniocentesis का भी गलत इस्तेमाल होने लगा to know the sex of the child or the gender of the child। so female पता चलने के बाद क्या होता था, लोग अबॉर्ट करवा देते थे। अंडरस्टूड। सो fetus is been found, अगर ये फीमेल रहता था तो अबॉर्ट करवा देते थे, which is obviously it is totally illegal। so आगे हम पढ़ेंगे कि उसके कितने सारे एक्ट निकले हैं। so the government of India has legalized MTP Act in the 1971 with strict conditions to avoid its misuse। तो चलो अब हम इस एक्ट को पढ़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, एमटीपी एक्ट। एमटीपी का तो मतलब ही अबॉर्शन, मेडिकल टर्मिनेशन, जिसको हम अमेंडमेंट भी कहते हैं, बट ये एक गवर्नमेंट ने उसको एक एक्ट बना दिया है 1971 में, इसको एक एक्ट बना दिया है कि हम कभी भी कोई भी इंसान इलीगल अबॉर्शन नहीं कर सकता, ठीक है, या मैटरनल मोर्टेलिटी भी नहीं कर सकता, ठीक है।
Okay, so according to this act, pregnancy can be terminated within first 12 weeks, more than 12 weeks, but less than 20 weeks. उसके लिए कोई भी ऐसे ही नहीं कर सकता, उसके लिए वैलिड रीजन होना चाहिए कि क्यों एमटीपी किया जा रहा है. यस, ऐसे ही नहीं कि बस मन आया तो एमटीपी कर दिया. देयर शुड बी सम वैलिड रीजन. उसका रिपोर्ट दिखाना पड़ता है कि सच में बच्चे में कुछ एबनॉर्मेलिटीज थी, इसके लिए एमटीपी किया गया. So the registered medical practitioner means doctor opinion is mandatory. Mandatory का मतलब क्या होता है? Compulsory. Stating the continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of a pregnant woman. अगर उसने ऐसा लिख के दिया कि हम एमटीपी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो बच्चा ग्रो हो रहा है उससे ये फीमेल को प्रॉब्लम हो सकती है, तभी उस कंडीशन पे एमटीपी होता है. या फिर जो बच्चा ग्रो कर रहा है वो एबनॉर्मल है, फिजिकली एबनॉर्मल है, मेंटली एबनॉर्मल है, या फिर उसको कुछ रिस्क है, यही सारे कंडीशन पे एमटीपी हो सकता है. अकॉर्डिंग टू दिस एमटीपी एक्ट 1971. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अगर इसके अलावा भी अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं, जैसे कि मदर को कोई रिस्क नहीं है, बच्चा भी नॉर्मल है, फिजिकली मेंटली सब चीज से नॉर्मल है, बच्चे को कोई रिस्क नहीं है, और फिर भी अगर एमटीपी होता है, then there is a very big punishment for it. Understood? और उसमें भी अगर ये पता चल गया कि वो फीमेल फीटस थी, तब तो फिर जेल ही जाना पड़ता है. ठीक है? So just go through about this act also. Please underline about this act. So एक बार ये भी देख लो, ट्यूबेक्टोमी को हम ट्यूबल लाइगेशन भी कहते हैं. हाँ, ये तो आपने वैसे भी स्क्रीनशॉट लिया था कल. So we have seen about the MTP or the medical termination. So एक बार जस्ट ये वाला भी पेज देख लेते हैं. So it is intentional or voluntary termination of the pregnancy under the full term. MTP can also be called as abortion in a normal term. It is essential in case of unwanted pregnancy or a defective fetus. Safe during the first trimester of the pregnancy, that is up to the 12 weeks. उसके बाद mostly MTP नहीं किया जाता है. Defective development of the fetus is examined by the amniocentesis. So Government of India has legalized MTP Act in the 1971 with a strict condition to avoid its misuse, that is, to reduce the incidence of the illegal abortion and consequent maternal mortality. Mortality means death rate. ठीक है? अब एमटीपी का नया 2020 का जो रूल है, इट इज अलाउिंग द अबॉर्शन विद इन 24 वीक्स. पहले 12 वीक्स था, अब उसको बढ़ा के 24 वीक्स कर दिया है. एंड बियॉन्ड 24 वीक्स इन स्पेशल कैटेगरी कंडीशन ओनली. ठीक है? पहले 12 वीक्स था, बट नाउ इट हैज बीन इन 2020 the weeks has been changed to 24, और उसके आगे भी किया जा सकता है if there is a special condition. So we have seen this amniocentesis. This is a karyotype. Karyotype का मतलब क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम के स्टडी को हम karyotype कहते हैं. तो आप देख सकते हो कैसे निडल को इंसर्ट किया जा रहा है और फिर ये फ्लूइड को का कैरियोटाइप किया जाता है. एमनियोटिक फ्लूइड का कैरियोटाइप किया जाता है. क्रोमोसोम का स्टडी किया जाता है फॉर नोइंग एनी एबनॉर्मेलिटीज. Now next topic which we are going to learn is about the STD. STD का मतलब क्या है? Sexually transmitted diseases. उसमें बहुत सारे डिजीजेस है, बट आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए सिर्फ 2 ही है. जब आप मेडिकल के लिए तैयारी करोगे या फिर आप नीट के लिए अगर आप तैयारी करोगे तो उसमें आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ने के लिए डिजीजेस है. बट फॉर 12th स्टैंडर्ड यू हैव टू लर्न ओनली दीज 2, सिफाइलस एंड गोनोरिया.
दोनों भी बैक्टीरियल डिजीज है, दोनों भी बैक्टीरियल डिजीज है। तो बैक्टीरियल डिजीज कोई भी होता है बेटा तो उसको हम ठीक किससे करते हैं, एंटीबायोटिक्स से ठीक करते हैं। कोई भी बैक्टीरियल डिजीज कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट, ये अपने दिमाग में भर के रखो। यस, वायरल के लिए वी कांट यूज एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इसीलिए आज कोरोना के लिए हमें वैक्सीन लेना पड़ रहा है। अगर ये वायरस नहीं होके बैक्टीरिया होता तो बहुत आसानी से ये पैंडेमिक नहीं होता, ये पैंडेमिक होता ही नहीं अगर ये बैक्टीरिया होता, क्योंकि उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज कर पाते हैं। बट वायरस का प्रॉब्लम क्या है कि वी कांट यूज एंटीबायोटिक्स फॉर अ वायरस, अंडरस्टूड, ठीक है। फॉर वायरस आवर बॉडी हैज टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। दोनों में बहुत फर्क है, एंटीबायोटिक्स में और एंटीबॉडीज में बहुत फर्क है, ठीक है। चलो let us see. So the causative agent for the syphilis is Treponema pallidum, and for the gonorrhea try to learn this in a comparison form तो जल्दी याद हो जाएगा। Again gonorrhea ही उसका species name है, therefore the disease का नाम भी gonorrhea है। Incubation period कितने दिन के लिए होता है, 3 to 4 weeks तक ये रहता है। मेल में गोनोरिया फॉर 2 to 12 days, बट जबकि फीमेल में 7 to 21 days तक इसका इन्फेक्शन रहता है। साइट क्या है, साइट विल बी ऑब्वियसली जेनाइटल ऑर्गन, तो जेनाइटल ऑर्गन से पास होकर रेक्टल रीजन में भी जा सकता है, और फिर इट में स्प्रेड टू द ओरल रीजन्स आल्सो। सिमिलरली हियर आल्सो गोनोरिया कैन स्प्रेड इन द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट और द रेक्टम और द थ्रोट और द आई ऑल्सो। ये जो बैक्टीरिया है ना, इट में इन्फेक्ट द आई ऑल्सो। यही बैक्टीरिया आईज को भी इन्फेक्शन कर सकता है, थ्रोट को भी इन्फेक्शन कर सकता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या है? सो अगेन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कैंक्री? अंडरलाइन। अगेन 3-4 year back कैंक्री was been asked as a 1 mark question, पर सब बच्चों को एक बड़ा सा ब्लैंक आ गए थे सामने, आंखों के सामने, कि कैंक्री वर्ड तो कभी पढ़ा ही नहीं है ना। तो कैंक्री का मतलब क्या है? रैशेस ऑन द स्किन। सो प्राइमरी लेशन इज कॉल्ड एज अ कैंक्री। लेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा लाल लाल रैशेस आने को हम लेशन कहते हैं, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। So cankri is formed mostly in the genital areas, skin rashes, mild fever, inflamed joints and loss of hair. It may lead, अगर ये infection बहुत ज्यादा हो गया तो it may lead to the paralysis also, and it may, ये जो बैक्टीरिया है अगर ये ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में और हमारे हार्ट में चला गया तो it may degenerate that particular organ and may lead to the death of a person also. Understood? So preventive measures क्या होना चाहिए? See, कोई भी bacterial disease अभी मैंने आपको बताया that can be treated with the antibiotics, but when it has been treated at the right time. अभी क्या होता है? See, we science के students, we don't have, we are learning all this topic. So you don't have that much shy as a arts and a commerce का student have. ठीक है, you may notice afterwards also this point कि if we talk about this all these topics, हाँ, so but arts का student and a commerce का student will be more shy to talk about this as compared to a science का student. So what happened कि अगर किसी को ये syphilis वगैरह हुआ है जो uneducated है या फिर कोई arts background का है या commerce background का है, तो they feel shy to discuss with the doctor, है ना, कि उनको ऐसा शर्म लगता है कि कैसे डॉक्टर को पूछने का, कैसे जाने का। तो ये जो शाइनेस है इट में लीड टू द डेंजर, ठीक है, बिकॉज फिर ट्रीट नहीं होता है तो उससे क्या होता है, ये बीमारी फैल के इट कैन बी फेटल ऑल्सो। सो एजुकेशन अबाउट द सेक्स प्रैक्टिसेस, सेक्स हाइजीन यूज करना, अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, है ना, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स, यूजिंग कॉन्डम्स ड्यूरिंग द कोइटस. So that can be used as a preventive measures. And the treatment is using penicillin. Penicillin is an antibiotic which is used to treat this bacteria. Next, let us talk about the gonorrhea. Gonorrhea in case of male, we have seen the site, we will see the symptoms. Male में क्या होता है? Partial blockage of urethra.
partial blockage of urethra and the reproductive duct, pus from the penis, pain and burning sensation during urination, arthritis, ये सारे symptoms हैं मेल के. फीमेल में क्या होगा? अगेन इन्फ्लेमेशन, स्टेरिलिटी, आर्थराइटिस. अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसे ये इन्फेक्शन है, हाँ प्लीज डू अंडरस्टैंड, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और अगर उसे ये गलती से इन्फेक्शन हो गया है तो जो बच्चा पैदा होता है ना वो ब्लाइंड पैदा हो सकता है, बिकॉज ये ब्लड के थ्रू ये जो बैक्टीरिया है ना इट इज ट्रांसप्लेसेंटल. हाँ फीटस की बॉडी में भी जा सकता है एंड इट में डैमेज द आई. As I've told you, this disease can damage the eye also. So बच्चा अंधा पैदा होगा. ठीक है. So child born to the affected mother suffers from gonococcal ophthalmia. Gonococcal ophthalmia which is a eye disease. Ophthalmic का मतलब होता है eyes. ठीक है. और it may cause gonococcal. Cocal का मतलब क्या होता है बेटा? Cocus shape. Cocus shape मतलब round shape. अंडरस्टूड. बैक्टीरिया के बहुत सारे शेप होते हैं ना, आपने 11th में पढ़े हैं ना, कोकाई होता है, Yes. विब्रियो होता है, स्पाइरल शेप होता है. तो गोनोकोकल मतलब राउंड शेप के गोनोरिया वाले बैक्टीरिया. हाँ अगर गर्ल चाइल्ड है हाँ तो इट में लीड टू द वल्वो वजाइनाइटिस, वजाइना में इन्फ्लेमेशन. अंडरस्टूड. ओके. सो प्रिवेंटिव मेजर्स तो यहाँ पे भी सेम ही होगा. सेक्स हाइजीन रखना है, कॉन्डम यूज करना है ना, अवॉइडिंग अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स. पर यहाँ का जो एंटीबायोटिक है ये अलग है. एंटीबायोटिक्स यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिफिक्सिन. इट कैन बी यूज सिफिक्सिन. यहाँ पे पेनिसिलिन था, यहाँ पे सिफिक्सिन है. अंडरस्टूड. सो अगेन बोर्ड एग्जाम के लिए एंटीबायोटिक का नाम आपको पूछा जा सकता है, बैक्टीरिया का नाम पूछा जा सकता है, व्हाट इज कैनक्री पूछा जा सकता है. अंडरस्टूड. प्रिवेंटिव मेजर तो बहुत आसान है, वो तो आप लिख सकते हो बाय योर ओन आल्सो, बट ये सारे टर्म एंटीबायोटिक्स के नाम आपको याद रखना जरूरी है. अंडरस्टूड. Yes, ma'am. Yes. Okay. Now let us talk about the infertility. Infertility मतलब sterile. Sterile को ही हम infertile बोलते हैं. So it is an inability to conceive naturally after 1 year of regular unprotected intercourse. So causes can be many. Physical causes. It can be PCOS, females में होता है. PCOD भी जिसको हम कहते हैं, PCOS मतलब PCOD. हाँ मतलब प्रॉपर PCOD में क्या होता है? हार्मोनल प्रॉब्लम है. इट्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम जिसकी वजह से 3-3, 4-4 महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है. और साइकिल नहीं हो रहा है मतलब कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है. ये तो हो गया फीमेल की बात. मेल की अगर हम बात करेंगे तो लो स्पर्म काउंट. लो स्पर्म काउंट को हम क्या बोलते हैं? ऑलिगो. बायो में ऑलिगो का मतलब होता है कम. कम. ऑलिगोस्पर्मी मतलब कम स्पर्म. या फिर कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज हो सकता है, या फिर कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये बहुत सारे कारण हैं फॉर इनफर्टिलिटी. सो उसके लिए हम आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. आर्ट. आर्ट का मतलब क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. हाँ अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. आर्ट का फुल फॉर्म असिस्टेड. जब हम असिस्ट कर रहे हैं, हाँ जब हम असिस्ट कर रहे हैं उसके अंदर कितने सारे पढ़ने के लिए आपको. IVF वेरी कॉमनली कॉल्ड एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी. हाँ बहुत ही कॉमनली उसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, बेबी बोलते हैं, पर उसको मेडिकल टर्म में क्या बोला जाता है? IVF. इन विट्रो. इन विट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? इनसाइड द बॉडी. इन वीवो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी. इन विट्रो, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड, इन वीवो मीन्स इनसाइड. ठीक है. सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जेन जिफ्ट, then gift, ICSI, AI, IUI, sperm bank and surrogacy. So let us understand that one. Okay. So going to the page of textbook, just a minute beta.
सो IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, व्हाट इट इज? टेस्ट ट्यूब में बेबी बनाना। ओके, ये सारे क्यों किए जाते हैं? दोज अ कपल वांट्स अ बेबी बट दे आर infertile or sterile. In these conditions we can use this art technique. So IVF में होता क्या है? मेल के पास से स्पर्म लिया जाता है, फीमेल के पास से एग लिया जाता है, ठीक है, उसको बाहर ही जाइगोट बनाया जाता है, उसको ब्लास्टुला कंडीशन तक बाहर रखा जाता है और उसके बाद उसको फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है. सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज अ IVF टेक्निक. अगेन इसमें 100% चांसेस होगा प्रेगनेंसी का, इसका गारंटी नहीं है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, ये जो ब्लास्टोमियर है, 8 सेल ब्लास्टोमियर जो कंडीशन है, हाँ, इसको कभी कभी जब हम इम्प्लांट किया जाता है फीमेल के यूट्रस में, तो फीमेल का बॉडी इसे फॉरेन बॉडी समझता है और फॉरेन बॉडी समझ के इसको रिजेक्ट कर देता है. और कभी कभी ऐसा नहीं होता है, वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है. सो दैट मे लीड टू अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी. अंडरस्टूड? So that is what is called as a test tube baby. क्यों बोलते हैं उसको? टेस्ट ट्यूब में नहीं बनाया जाता है obviously, but it is the zygote formation is done outside the body, therefore it is called as a test tube baby. Understood? Next is the zygote intrafallopian transfer. Zygote intrafallopian transfer, again the name से ही उसका मतलब समझ में आ रहा है. एग रिमूव किया जाएगा फीमेल के बॉडी से, ठीक है, स्पर्म रिमूव किया जाएगा, उसका जाइगोट बनाया जाएगा बाहर, इनविट्रो जाइगोट बनाया जाएगा जिसे हम IVF बोल रहे हैं. अब यही जाइगोट को जब हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी हम इसका ब्लास्टोमियर में नहीं कर रहे, अब हम जाइगोट फॉर्म में ही इसको ट्रांसफर कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, ताकि फैलोपियन ट्यूब में वो अपना सारा प्रोसेस करे, क्लीवेज करे, इम्प्लांटेशन करे. अंडरस्टूड? IVF टेस्ट ट्यूब बेबी में और ZIFT में फर्क समझ में आया आपको? यस मैम. IVF टेक्निक में क्लीवेज बाहर ही हो रहा है, क्लीवेज बाहर ही हो रहा है. 8 ब्लास्टोमियर फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कितने क्लीवेजेस हो रहे हैं? एक क्लीवेज से 2 सेल, 2 ब्लास्टोमियर, फिर सेकंड क्लीवेज से 4, फिर मतलब 3 क्लीवेजेस बाहर किए जा रहे हैं और फिर थर्ड क्लीवेज के बाद बॉडी के अंदर डाला जा रहा है ताकि वो इम्प्लांट करे. बट ZIFT में क्या किया जा रहा है? जाइगोट को बाहर क्लीवेज नहीं करवाया जा रहा है, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट किया जा रहा है ताकि वो फैलोपियन ट्यूब में ही क्लीवेज करता हुआ आए. अंडरस्टूड? सो दैट इज ZIFT. नेक्स्ट इज GIFT, गैमेट का इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर. अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि गैमेट को मतलब स्पर्म को हम ट्रांसफर कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, ताकि अभी समझो कि स्पर्म जो है वो इतना उसके पास इतना मोर्टेलिटी रेट नहीं है कि वो मतलब वहां तक फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाए. तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको असिस्ट कर रहे हैं, हम बाय सिरिंज और समथिंग लाइक दैट वी कैन इंट्रोड्यूस, हम स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन तक पहुंचा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? गैमेट का ट्रांसफर. ठीक है, इन केसेस ओनली देन कभी ये किया जाता है GIFT, गैमेट का ट्रांसफर कभी किया जाता है, हैज बीन डेवलप्ड फॉर द केसेस इन व्हिच ओनली द एंट्रेंस टू द ओविडक्ट और द अपर सेगमेंट ऑफ ओविडक्ट इज ब्लॉक्ड. ठीक है, अगर ओविडक्ट का सेगमेंट ब्लॉक है, ये सारे कंडीशन में GIFT का प्रोसीजर किया जाता है. तो अभी मैंने आपको बताया, इन दिस प्रोसीजर ओवा दैट इज एग एंड स्पर्म आर डायरेक्टली इंजेक्टेड into the region of the oviduct where fertilization takes place. Understood? Next is ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Again in vitro fertilization procedure है ये सब. इसमें क्या किया जा रहा है? When a single sperm cell is injected directly into the cytoplasm of ovum. Please understand, egg के cytoplasm में स्पर्म को डाला जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है इन द लेबोरेटरी. तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, एग के साइटोप्लाज्म में. एग के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? ऊप्लाज्म कहते हैं. उसमें जब स्पर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है, where sperm has to naturally penetrate the egg. Understood? नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ये मोस्टली कैटल्स में किया जाता है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन कैटल्स.
हाँ, इसमें क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन किया गया है, सीमेन को वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है आर्टिफिशियली, ठीक है। In some cases, infertility cases में the male partner is unable to inseminate the female due to very low sperm count. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए we are having a technique that is the artificial insemination. तो स्पर्म को कलेक्ट किया जाएगा और कलेक्ट करने के बाद उसको सर्विक्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और जिससे कि क्या होगा, इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा। इन विवो मतलब आउट इनसाइड द बॉडी। नेक्स्ट इज द IUI, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूटराइन मतलब यूट्रस में। सो ये टेक्निक में भी क्या हो रहा है, इंसेमिनेशन हो रहा है, स्पर्म का इंट्रोडक्शन हो रहा है, पर किधर, यूट्रस में हो रहा है इंस्टेड ऑफ सर्विक्स। ऊपर वाले में क्या था, सर्विक्स था, प्लीज अंडरलाइन। AI में सर्विक्स है, IUI में यूट्रस है, पर टेक्निक दोनों सेम है। ओके, नाउ अगर समझो किसी का स्पर्म अच्छा फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो देयर आर स्पर्म बैंक्स आल्सो। इफ यू हैव सीन द मूवी नेम्ड विकी डोनर, ठीक है, in Wiki Donor you must have heard about this sperm bank, ठीक है। आयुष्मान का पिक्चर है, that is a Wiki Donor in which he has explained or he has been played a role कि he is a sperm donor. So many people are there. अभी जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे कि बहुत कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है, तो we know that copper is having it is spermicidal. तो अच्छा खाना है, पीना है, फिर भी unknowingly because of less knowledge क्या होता है कि हम unknowingly ऐसे चीजें करते हैं that may lead to the infertility problem, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में देयर आर स्पर्म बैंक्स अवेलेबल, जैसे ब्लड बैंक होता है या फिर सीमेन बैंक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वहां पे क्या किया जाता है, लोग डोनेट करते हैं स्पर्म को, ऑब्वियसली दे आर गेटिंग मनी फॉर दैट, ठीक है। Good qualities of sperms are donated by a healthy man, and these sperms are being stored by the cryopreservation. Same preservation जिससे umbilical cord का preservation होता है, वही preservation से हम cryopreservation भी कर सकते हैं। Understood all of you? Sperm bank and semen bank. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Next technique is the surrogacy. Surrogate mother. What are surrogate mother? Surrogate mothers क्या है? दूसरे लेडी। एक मिनट बेटा, यस, सरोगेसी का मतलब क्या होता है बेटा? सरोगेसी का मतलब ए नॉर्मल टर्म, इट इज बीन कॉल्ड एज, दूसरी लेडी नहीं है बेटा। दूसरी लेडी किस लिए है? दूसरे लेडी का बेबी अपने अंदर फर्टिलाइज करे वो, मतलब एम्ब्रियो दूसरे लेडी के अंदर इम्प्लांट। यस, वेरी गुड बच्चा, यस। सो उसको हम नॉर्मल टर्म में भाड़े की मम्मी भी कह सकते हैं, है ना। तो व्हाट इज दैट सरोगेसी कि इफ सम फॉर एग्जांपल सम कपल वांट्स अ बेबी, ठीक है, बट जो फीमेल है शी इज इम्पोर्टेंट मतलब शी कांट गिव बर्थ टू अ यंग वन, तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम किसी फीमेल को हायर कर सकते हैं और हम उसका यूट्रस क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, हम उसका यूट्रस इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर गेटिंग दैट ओन कपल्स बेबी। मतलब इस कंडीशन में भी क्या होगा, IVF टेक्निक होगा। IVF टेक्निक होगा मतलब जो कपल को बच्चा चाहिए, हम उसका एग ले रहे हैं, हम उसका स्पर्म ले रहे हैं, हम उसको जाइगोट बना रहे हैं। अब जाइगोट बनाने के बाद हम उसी फीमेल के बॉडी में नहीं डाल के हम लोग कोई और फीमेल के बॉडी यूट्रस में डाल रहे हैं, और 9 मंथ तक वो सिर्फ बच्चे को ग्रो करेगी। बाकी जेनेटिकली वो बच्चा किसका होगा, जो दूसरे जिसको चाहिए था, जो कपल्स को चाहिए था। तो सरोगेट मदर का उस बच्चे के साथ जेनेटिकली कुछ भी लेना देना नहीं होता है, जेनेटिकली कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। ऑब्वियसली इमोशनल अटैचमेंट्स है, बट नॉट द जेनेटिकल अटैचमेंट्स। अंडरस्टूड? बिकॉज द zygote has been formed from the couples who want it. Understood? Okay, so
that is called as a biological mother. And the last option, if surrogacy is also not working, if all this art technique is not working, test tube baby is not working, gift is not working, ZIFT is also not working, so the last and the final option is adoption. Understood? So adoption can be done from any of the orphan this thing. So it is a legal process by which a couple or a single parent gets legal right. You must have heard about the Karan Johar also. He has also done with surrogacy. Do you know that? Do you know? Okay. No, So he is having twins. He is having a twins. Okay. So responsibility that are associated to the biological child for the upbringing of the adopted child. So adoptive parents should be medically fit, financially able to take care of the adopted child. A person wishing to adopt a child must be at least 21 years old, but there is no legal upper age limit for the adoption. But yes, all these things is been noted down कि उनको कुछ एज तो नहीं है, कैंसर नहीं है, तभी फिर adoption किया जाता है. And the last topic for y'all is about the alcoholism and drug addiction. So drugs, smoking, tobacco, हाँ, इस सब से भी क्या होता है, इनफर्टिलिटी होता है both in male and the female. निकोटीन जो टोबैको में पाया जाता है, it blocks the production of sperm and decreases the size of the testicle. And alcoholism by men क्या करता है, lower down the interferes with the synthesis of testosterone and has an impact on the sperm count. Again, ये सारे drugs का इस्तेमाल करना भी reduces the quality of the sperm. So I think so with that, this particular topic has been finished. So I will just show you the assignment and then we can disperse. Wait, just a second. So we have discussed all this technique. I request you to note down this assignment, all of you. Take a screenshot of this page. All of you take a screenshot of this particular page. Have you done? Yes. So next lecture में probably we will be starting with the origin and evolution. In origin and evolution, you have to learn only two this thing.